Good evening and a very warm welcome to our respected guest speaker, Dr. Swati Ma'am, and all the delegates present here. I am Vaidya Yash Chaudhary, founder of Yash Arthaveda Foundation. It gives me immense pleasure to welcome you all to today's insightful session. We are truly honored to have with us Dr. Swati S. Mohite Ma'am, a respected academician, clinician, and a researcher in the field of Ayurvedic obstetrics and gynecology. Mem brings with her an incredible experience of over 33 years in academics, 30 years in research, and more than 3 decades of clinical practice. Mem is currently serving as professor and HOD at Bharatiya Vidyapeeth College of Ayurveda. Her remarkable achievement includes prestigious recognitions like Dhanvantri Award, Best Teacher Award, and multiple research. She has also represented Ayurveda globally, delivering talks with presenting research in countries like the USA, Israel, Switzerland, and more. Today, we are privileged to learn from her vast knowledge and clinical expertise. On behalf of the entire team, I warmly welcome you, ma'am, and thank you for taking out your valuable time to guide us. Thanks a lot, ma'am. Shall I start now, Yash? Yes, ma'am. Yes. So, namaste, everyone. Thank you, Yash, for a brief introduction. Uh, Today, actually, we are going to have a introductory lecture regarding what we are going to learn in the 10 days. What are planned for the infertility course? In these 10 days, during those 10 days, we are going to discuss not only about the infertility only, but before infertility, that is preconceptional, what Ayurveda is actually uh, having views about the preconceptional counseling also, because nowadays healthy progeny is also very important thing. So we are going to discuss about the uh, preconceptional care. Along with that, what lifestyle should be that lady or the couple must have for the prevention of the diseases. Because if you know that, we last lecture whoever have attended, we have seen that the origin of adult diseases is very much closely related to the uh, intra antenatal nutrition of the fetus. So we will talk about the how those diseases also can be prevented while by doing preconceptional counseling, and even how we can prevent that. So that would be the our first. I'm going to have some slides which will be theoretical in nature, because again, uh, I know as an academician that in every college we are not going, the students are not, actually the teaching is not very good in most of the colleges, whatever my observation of last 35 years of my um, academic career. Because whenever we get PG students from various colleges, so we get to know that in their colleges the theoretical part is not well taught to them, and even there is no lot of clinical exposure they got. So few theoretical slides will be there, but I will try to explain, or I will try to share my clinical experience with you all. So the first lecture will be on the definition, prevention and preconceptional care. The second topic what we will cover is that the concept of infertility, because many times we think that okay, tubal block is not mentioned in Ayurveda. No, it is not like that. Tubal block is there mentioned in Ayurveda, but it is diagnosed in different way. So that concept, if we understand the concept, then you can manage the you can build a treatment pillar on that conceptual understanding. Because if I tell you that I am using so and so drug here in Pune, it may not be possible to get the same drug, same medicine, same herb in your area. So if you understand the concept, then it will be very easy for you to practice in the available
whatever products you have in your area. So that concept I will try to explain you in detail. The third very important part is that the etiology, that is the pathophysiology, or you can call it as a samprapti. So even hetu and samprapti both are different in different types of infertility, because many times we think that in all infertility cases we try to give you the same medicines or use the same protocol. I have, of course, my own protocol which I set after having multiple trial and error done during my practice. But still, now after doing so much, after seeing so many patients, I have developed my own protocol. That also I'm going to explain you, and why that protocol, that will also be explained during this. But basically, if you identify the hetu, or the what are the causes of that cause of the infertility, then you can understand what happened to develop that the infertility. So samprapti also we are going to discuss in various kinds of infertility with various examples. Even if I am thinking to have to share some case papers with you all, where you will understand that actually how we are keeping the records, how we are uh, managing the patient. That also I am trying to do it. The third part is very important, that many times we get to know that there are many cases of unexplained infertility. So I always used to say that even if there is unexplained infertility according to modern science, but on the base of Ayurveda principles, that is dosha dhatu mala siddhanta, we can explain that unexplained infertility. So for that, if you understand the how to evaluate the um, artava, how to evaluate, how to do the pervaginal examination, so that you will understand what dosha is there. So that is very important. So while we are treating the case, then the fifth lecture we are going to talk about the diagnostic investigations. This will not only related to the modern science though. So patient comes to your clinic with the uh, ready paper showing that tubal block, showing that unexplained infertility, showing you polycystic ovarian disease, or showing you some other reports, ovarian cyst or like that. So even if those diagnostic investigations available for us today, still we are supposed to interpret or put that case in our dosha dhatu mala siddhanta, so that our ayurvedic way of diagnosis should be done. Then the sixth very important is important. So first five will be little bit theoretical lectures, but I think these are very essential knowledge that one must have. From the sixth lecture onwards, we are going to discuss about actually the management of every type of infertility. So if the PCOD cause is there, then what could be the management? If the tubal block is there, what could be? Means kshetra vikruti is there, what could be the management? If the hormonal abnormality, what could be the management? So the principles of management, of course, Ayurveda management, because uh, Ayurveda management will not be the same in all the cases. So we should try to identify the how we can design the management in each and every patient. Then the seventh lecture will be on the internal treatment, that is internal medication, which are very important. So internal medications, even I will try to explain you, or I will try to present in front of you that how modern science researches are also supporting our Ayurvedic treatment. So, for example, for the implantation, for luteal phase defect, LPD or implantation, the lipids in the endometrium plays very important role. So whatever falagrutas we are using, falagrutas or other grutas we are using, or even simple gruta we are using, clarified butter,
There are a lot of researches supporting that lipids levels in the endometrium plays very important role. Even cytokinins in the endometrium plays very important role for the uterine signaling, which where there is acceptance of the embryo. So if cytokinins or lipids are not adequate, I'm just giving you an example, not adequate, then even IUI and IVF or ICSI can get failed. So uh, how to use our potentials to the uh, improve the IVF failure or the IUI failure or the ICSI failure, that also we are going to discuss. Because most of the time patient, we are not the Ayurved practitioners are not the first choice for getting of infertility uh, uh, for the couple. We are the last choice when they go for the 2 3 IUI, what means IVF ICSI, and if they get failed, then they come to us, yes, now I want the treatment from you. So this is very important, that you must understand that what are the side effects of those treatment, and what will be your treatment for treating that patient. So internal medication, we are going to talk about that in the 7th lecture. In the 8th lecture, I am going to tell you that which panchakarmas are indicated in which kind of or which type of infertility. So for that, whatever my experience and whatever the references from the grantha, of course theory also we will discuss, but even my clinical experience I will share with you all, that which kind of infertility needs which kind of panchakarma, which kind of infertility needs which kind of pachan chikitsa, then shodhan chikitsa, and then internal medication. So sequence may differ in each and every patient. In the last 2 lectures, uh, like I conduct the lectures when the for the Brazil University, Bahia University in Brazil, or some other universities, not means outside universities. So even online, I tell them that before those lectures, you should get prepared with some, how to prepare the pichu, how to prepare that yoni dhawan, parisechan, and all. So all these the local treatments, because these are very important treatments. Of course, for ovulation induction, Uttar Basti Pichu local chikitsa may not be much effective. For that, you need Shirodhara, Nasya, and all combined treatment. But local treatment are also very important, because after all, at the end of the day, that embryo has to get implanted, or nidation is there in the uterus. So uterus should be treated very well. So you know that Rutu Kshetrabhu Bijanam Dhruvam Chaturunam Sanidhyat. That sutra you all know. Because of that, we must prepare the reproductive system properly for the nidation or for the implantation. So the last 2 lectures, we are going to talk about the sthanik chikitsa. Here during all my lecture, I'm, because most of the students, I think they are BMS, few did their post graduation also, but in my all lectures I will tell you that which treatment BMS doctor can give, and which treatment the BMS MS doctors can give. Because there nowadays there are very too much medico legal problems all gynecologists are facing. So while we are practicing, we should protect yourself also, so that you will not face any medical legal problems. So that also I'm going to explain you. Even in my lecture, while I'm going to show you the case papers, I would like to encourage you that you should keep the records very properly, so that even if the patient is going against you, you will not face any problem. That also for infertility cases. See, I remember a case where the my resident wrote on the paper that Vandhya Yoni. So that patient get offended that, Are, how you can call me Vandhya? And there was a lot of dispute. So which terms to be used, which terms should not be used, because
there is a difference of opinion or patient is not in favor of you, patient will not stay with you. She will try to find out some other doctors. So in those 10 lectures, I will try to explain you the theoretical part, the management part, and the local treatment part. So this is my introduction of those 10 lectures. And yes, I'm sure that after this lecture, you will be able to practice infertility in your own clinics. So yes, now the students can ask me the questions also. And even if they want, because we have already shared the topic titles and the subtopics also. If they want some more inputs from my side, they can tell me so that I can include in my lectures also. Good evening, ma'am. Yes, good evening, Um, Smita. Yes. Myself, Dr. Smita, ma'am. I just wanted to ask, like, as we are going to look into the preconceptional things, so can whether we are going to discuss some part of yoga and pranayama, which are important for the fertility and to counsel the couple. Uh, See, I am not expert in yoga and pranayam, and I don't, practice. I send that patient to the yoga special. This is the medical legal aspect right now again, because we are Ayurvedic doctors. We are not yogacharya. Just few days Yeah. back, there was a patient in my OPD, ANC patient. She came to OPD, and the complaint she brought on the wheelchair, not on the ambulance, from her home to our hospital. And she was telling me that she was not able to move her left leg at all, right? And she was Okay. brought on the ambulance, in the ambulance. Otherwise, BP pulse, everything was normal, FHS normal, everything was normal. Only there was a um, no leg movements at all. Left leg movements were absent at that time. The reflexes were normal, but movements were not there. When I asked her that uh, what happened means what you were doing and how this happened. So she told me that she was attending online yoga, and during that yoga, for normal delivery, she was asked to perform few yogas online, and she lost the movement. So we did then MRI, we have to take the neurophysician opinion, we have to take the ortho opinion, and at the end we have to do her cesarean section, because if the labor starts, she will not be able to bend the legs. I'm Yeah. not the expert of yoga, so I will not talk on that. I'm extremely sorry. I'm not expert in that, and even I don't have knowledge of yoga also. So some yoga person can talk on that, but I will avoid to do that because I'm not expert. Even I have not studied on that. Okay. I mean, if we have any some 1 hour, 2 hour lecture by any expert in this field, can be So included that in this, so that we can know whether our patient is doing right or wrong. They may ask, Doctor, I'm doing this from this institute, I'm doing this from this teacher, and all. At least we may be knowing that is this you can do or this you can't do, like that. No, but still, I don't think that we should means we must have that knowledge in 35 years. I don't find that we must have the knowledge of yoga and all to treat the patient. I don't think so. Okay, ma'am. There Thank you, there ma'am. are experts in yoga and all, na. See, there are so many, alternative medicine people are there, right? Crypto, some new is there, na. Crypto or Reiki people, they also do the infertility. Even meditation people, the people who are means explaining meditation, even that Maharshi, Maharshi Ayurved, they are also doing on meditation. But I'm not expert in that. That call should be taken by the organizer, that whether this knowledge is essential for in this course or not. Even you can do a special yoga course also there are many yoga courses in that. But again, uh,
whether we are expert in that, or we are legally advised to do that or not. In that case, what I discussed with you, that patient can Mhm. sue that online yoga teacher in the court, because of the if she is not having, that person is not having the Mm. qualification in yoga, because that Yeah. patient was so disturbed, when she was actually literally, that leg was literally like a paralyzed leg. Okay, so she can Yes, see ma'am. that doctor, online doctor. That doctor is BMS only. She gave me that Okay. number. So she can sue that doctor if she is in the qualification of yoga. Like you Mm. and me, I also don't have the qualification of yoga. Mm. Mm. That is a Mm. separate course. So even Yes. we advise in our OPD, and if something wrong happens, that Mm. patient Mm. can go to Grahak Manch also. It is Ah, not so okay. easy to advise, and if you are not having that degree and you are advising all these things, this is somehow is happening in our branch, in Ayurved branch, that people are, even they are not having done the course, and still they are advising so many things. So we should avoid that, what I think. Okay. As a teacher, I don't want anyone to go in a situation where medical legal case you can face. Okay, ma'am. And we would love to hear you, what are the medical legal aspects we may face in our practice in further days. Absolutely. Very important, because in Pune, Maharashtra, specifically in Maharashtra, even if there is a after death after hysterectomy also, not means Okay. prenatal means pregnancy patient, Hmm. even any women death can be put on the PMC or death audit. You have to attend it. Even death is not there in your OPD. If patient Okay. once visited in your OPD and Hmm. Hmm. somewhere else, still you can call, the PMC can call you and ask the details when patient is there in your OPD. So these are very Uh, too much things हेलो happening. मैम। Yes, hello Sherry, bolo. Yes. मैम जैसे गर्भ संस्कार में जो ये योगा पोजेस है जैसे कैट पोज हो गया, ये हाँ, सब तो हम पेशेंट को बता सकते हैं ना, अगर बेसिक योगा नॉलेज से। हाँ बेसिक, बट अगेन मैं आपको वही बोल रही हूँ कि अगर आप उस पे काम करना चाहते हो, तो आप एक छोटा सा 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने का एक योगा अच्छा कोर्स करो, आपका डिग्री, एक सर्टिफिकेट रखो, और फिर कुछ भी आप उसको कैट पोजीशन ये वो कुछ भी बता सकते हो. This is my view, of course. You may have a different view, but this is my view, because मेडिको लीगली ये हमको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, 100 केसेस में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कोई एक केस हमको बहुत कुछ सिखा सकता है. तो इट्स बेटर टू, इफ यू वांट टू डू दैट ना, यहाँ पूना में बहुत अच्छे योगा टीचर्स है. सो आई कंसल्ट देम, आई सेंड द पेशेंट टू देम कि बाबा इनको योगा का इसमें ये करिए. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो आयुर्वेद में पंचकर्मा और सब इंटरनल मेडिकेशन करते हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इनफर्टिलिटी के केसेस में. दैट इज एडिशनल सपोर्ट सिस्टम वी हैव, बट यू कैन डू इट. डू अ शॉर्ट कोर्स एंड गो फॉर इट. I am not doing, that doesn't mean कि you cannot do. You should do it. You can do it. लेकिन कोई प्रॉपर चैनल से आप उसको सीखिए और फिर एडवाइस करिए. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग संगीता. मैम अभी आपने जैसे मैम आपने जो योगा के लिए बताया कि अगर हम जैसे पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो कभी ऐसा कुछ अगर कुछ होता है तो मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम अपने पेपर पे ये लिख सकते हैं ना, रेफर टू योगा टीचर फॉर 100%. दिस, तो फिर उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी 100% उस नहीं तरह आएगी. से. नहीं, 100%. सी, मैं वहां पर अभी देखो, पंचकर्मा जब मैं एडवाइस करती हूँ खुद, हाँ, किसी भी पेशेंट में, तो पंचकर्मा का गुरुत पाचन मैं डिसाइड करती हूँ, गुरुत्व मैं डिसाइड करती हूँ. उसके बाद में ये दोनों जो मेन चीज है ये मैं डिसाइड करती हूँ. लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो पंचकर्मा
एमडी पंचकर्म व्यक्ति जो डॉक्टर है उसके पास भेजती हूँ और उसको कहती हूँ कि आप प्रोसीजर करिए। तो पंचकर्मा अगर मैं पंचकर्म देती हूँ एमएस गायनिक पर्सन और उसमें कुछ हो जाता है तो मुझे 100% लीगली आई कैन फेस द प्रॉब्लम्स। लेकिन पंचकर्मा एमडी जो डॉक्टर रहेगा, that person will not face the problem if something happens during the panchakarma. तो मैम इसमें तो हमारे लिए रिस्क ही रहेगा, अगर जैसे हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को, अगर हमारे यहाँ जैसे कोई पंचकर्मा वाले स्पेशलिस्ट नहीं है और हम लोग करते हैं या एडवाइस करते हैं, तो हमारे लिए इसमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई कभी कुछ पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो नहीं, उसमें हम अगर क्या आप करेंगे? एडवाइस करते हैं, देखिए आप मैं एडवाइस करती हूँ पंचकर्म के व्यक्ति, पंचकर्म स्पेशलिस्ट के अंडर वो पंचकर्म कंडक्ट हो जाता है और कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना आपको आएगी ना पंचकर्म के व्यक्ति को आएगी। अगर पेशेंट की डेथ भी हो जाए तो भी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैम हमारे यहाँ नॉर्थ में जैसे मैं मथुरा में रहती हूँ मैम, तो हाँ। यहाँ ऐसे पंचकर्मा स्पेशलिस्ट नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करें? नहीं, वो केस में आपको ऐसे सेफ पंचकर्म देने पड़ेंगे और सेफ प्रैक्टिस करना पड़ेगा जहां पर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो जैसे मैम हाँ जी मैम कोर्स में मैम आप थोड़ा इजी पंचकर्मा या सद्य कुछ बताएंगे इसके बारे में? 100% मैं बताने वाली हूँ। मुझे पता है द स्टूडेंट्स आर BMS ऑल्सो एंड पोस्ट ग्रेजुएट ऑल्सो। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं आई विल डेफिनेटली मेंशन दैट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से आप ये कर सकते हो, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से आप ये केयरफुली करिए। नहीं करना ऐसा मैं नहीं बोलूंगी। देखो मेरे यहाँ भी अगर हम लोग सर्जरी भी करते हैं तो हम लोग मॉडर्न मेडिसिन के व्यक्ति का साइन ले लेते हैं, क्योंकि आई नो कि मैं लीगली आई एम प्रोटेक्टेड टू डू एनी गायनिक सर्जरी, बट स्टिल आई एम लेस प्रोटेक्टेड देन द MBBS MS पर्सन। मैं अगर मेरे अगेंस्ट मेडिको लीगल केस जाती है तो मुझे 10 साल वो लड़ना पड़ेगा, लेकिन उनके अगेंस्ट जाती है तो वो 6 महीने में छूट जाते हैं। तो वाई टू टेक द रिस्क? दिस इज माई व्यू। अगेन दिस इज माई व्यू, पीपल में हैव अ डिफरेंट व्यू। और ये हुआ है in my 35 years of practice. I have faced these kind of problems. ओके, थैंक यू मैम। तो मैम ये हाँ सॉरी मैम Yes. शिरोधारा, नस्य, ये सब भी पंचकर्मा में 100% सेफ प्रैक्टिस करो ना। मैं आपको बताती हूँ ना कि कौन सी प्रैक्टिस आप सेफ है और वो कर सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट भी मिल जाएंगे आपको। मैम इस कोर्स में आप बताएंगे ना ये सारी चीजें? 100% बताने वाली हूँ मैं। ओके, थैंक यू मैम। इसलिए मेरा पंचकर्मा का शायद वो एक घंटे का लेक्चर शायद मैं 2 घंटे भी ले सकती हूँ, लेकिन आपको वो जो चिकित्सा वाला पार्ट है वो अच्छी तरह से आना ही चाहिए। थैंक यू मैम। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलेगा? मेरा जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का यस डॉक्टर, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का कोई और है एक्चुअली, बट व्हाट आई एम इन लास्ट 2 लेक्चर्स ना, मैं आपको जो हमारा 8th लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको कोई लिस्ट ऐसी दे दूंगी कि वो लिस्ट आप जब 9th एंड 10th लेक्चर को आप जब बैठोगे तो वो सब साथ में लेकर आपने बैठना है। एंड मैं आपको ये बताऊंगी कि ये ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, और आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगी कि आपने ये किस तरह से करना है। सी वैद्य कॉम्प्लिकेशंस जितना हम लोग अवॉइड कर सकते हैं किसी भी प्रोसीजर में, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। जैसे हमने पीचू ऐसा बनाया कि जिसके धागे अंदर रह गए, बाद में इन्फेक्शन हो गया, PID हो गया और पेशेंट अपने पास आ जाता है, राइट? तो इस तरह से जो भी रहेगा तो आई विल टेल यू कि आप ये चीज लेकर आप बैठिए और नाउ ऐसे 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 करिए। और मैंने उसमें इतना हम लोगों ने प्रिसाइज वर्क किया हुआ है कि जो सब स्थानिक चिकित्सा है उसमें कितने साइज का गॉज चाहिए, कितने थिकनेस का कॉटन चाहिए, कितना लेंथ का थ्रेड चाहिए। सो आई हैव डन एवरीथिंग सो प्रिसाइजली। So if in your practice also, if you use those all material precisely, then there will be, जैसे पीछू अंदर रह गया, धागा ही टूट के बाहर आ गया, you know,
सो दिस काइंड Okay. ऑफ कैन हैपन इन अवर ओपीडी ना, तो हमने वो प्रिसाइज काम किया है। तो 8th लेक्चर में मैं आप सब लोगों को एक लिस्ट दे दूंगी, तो आप अपना अपना कॉटन, गॉज, लिनन थ्रेड एंड एवरीथिंग आप लाकर रख सकते हो। तो आप उसमें वो बनाने के बाद में मैं आपको पोजीशन भी बताऊंगी हाथ की, कि किस तरह से आपने उसको इंसर्ट करना है। अगर आपको पीछू राउंड है तो किस तरह से इंसर्ट करना है, लॉन्ग पीछू है तो किस, सो दैट आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप प्रैक्टिस में कर सकते हो। Okay. Okay. Thank you, ma'am. यस मैम आप पीसीओडी, ओलिगोमेनोरिया, एंडोमेट्रियोसिस इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाँ, जो कॉजेस है इनफर्टिलिटी की, जैसे पीसीओडी इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, राइट। तो आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पीसीओडी आपको 100% एक्सप्लेन करूंगी। मेरे जो केसेस मैंने ट्रीट किए हैं वो भी आपको बताऊंगी। दूसरा जो आपने बोला एंडोमेट्रियोसिस, यस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एंडोमेट्रियोसिस बिकॉज नाउअडेज दैट इज अ मेजर कॉज फॉर इनफर्टिलिटी। एंड व्हाट थर्ड यू टोल्ड मी? PCOD, endometriosis and oligomenorrhea, यस right? मैम। Yes. All these three we are going to discuss. ओके, थैंक यू मैम। Yes. हेलो। Hello, sir. Hello, sir. हाँ जी Yes. मैम, आवाज हाँ जी हाँ मैम, सर, आवाज आ आपकी रही है। आवाज आ रही है। Yes. तो मेरे को पूछना था, हमें जैसे हमने पेशेंट जैसे एक देखे थे ना, हाँ। उसमें जैसे हम इनका पेशेंट का फॉलिकुलर स्टडी हुआ है और उसमें इन्होंने प्रॉपर जैसे 2 बार या 3 बार फॉलिकुलर स्टडी भी हुई है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई थी इनकी। हाँ। तो उसमें हम आयुर्वेद में आगे हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? जैसे एक इंस्टाग्राम में भी फेमस डॉक्टर है, आई गेस फ्रॉम महाराष्ट्र, पुणे। हाँ। तो वो मेनली इसी पे काम करते हैं, इनफर्टिलिटी पे। तो मतलब आयुर्वेद पे हम इसमें नेक्स्ट क्या स्टेप कर सकते हैं, वो आप इसमें कोर्स में बताएंगे फिर प्रॉपर? Yes. देखिए, infertility is very broad term. The causes are very different, but you are the end complaint of the patient is not able to conceive, right? तो हम लोगों Yes. को ये देखना ही पड़ता है कि अनओवेटरी साइकिल से इंफर्टिलिटी है, पीसीओडी से इंफर्टिलिटी है, ओलिगोमेनोरिया से इंफर्टिलिटी है। जैसे देखो कि अगर इंडक्शन दिया जाता है, करेक्ट, लेट्रोस से दिया Yes. जाएगा, फर्टिल से दिया जाएगा, हाँ जी। उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन तो तैयार होता है, ओव्यूलेशन तो हो जाता है, लेकिन उस ड्रग का साइड इफेक्ट ये रहता है कि एंडोमेट्रियम थिन रह जाता है। अच्छा। करेक्ट। तो ओव्यूलेशन इंडक्शन देने के बावजूद, इंड्यूस्ड साइकिल्स में बोल रही हूँ, नॉट नेचुरल साइकिल्स बोल रही हूँ। तो इंड्यूस्ड Yes, साइकिल्स yes. में जब दिया जाता है, इंडक्शन दिया जाता है या फिर HMG दिया जाता है, HCG दिया जाता है, तो ऑल दोज ड्रग्स आर हैविंग अ साइड इफेक्ट दैट एंडोमेट्रियम थिन हो जाता है। तो अगर हम उसके साथ आयुर्वेद भी यूज करते हैं, सी every pathy have their strength and their weakness or lacunae, or I can weakness ही मैं बोलूंगी। तो उसका साइड इफेक्ट एंडोमेट्रियल थिन हो जाता है। तो हम वो लोग उसके साथ अगर 3 दिन आप लेट्रोस दे दो, 3 दिन आप फर्टिल दे दो, और उसके बाद में कोई आयुर्वेदिक ड्रग ऐसा दे दो कि जिससे वो एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो 9-10 तक जाएगा। और सी every time you are supposed to do the diagnostic to use diagnostic tools। हाँ, ऐसे ही नहीं बोलना है कि हम लोगों को अरे हो गया, नहीं, देखो आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ा है। यस मैम, जैसे फॉलिकुलर स्टडी थी हाँ। तो उसमें जैसे पेशेंट का पहले सेकंड डे से लेटरोस शुरू हुआ था। करेक्ट। तो उसके बाद वो सब आगे जो वो था कि एग का साइज जो है प्रॉपर हो जाए, उसके बाद उनका ये जो एंडोमेट्रियम थिकनेस के लिए बोल रहे हो आप, हाँ। तो वो भी उनका फिर नॉर्मल जितना 8 से 10 के बीच में आ गया हुआ था। हाँ। तो फिर उन्होंने जो आगे वो देते हैं ताकि वो एग फोड़ने के लिए, हाँ। तो उसके लिए वो सब किया हुआ था, लेकिन उसके बाद उनकी नहीं हुई थी वो प्रेगनेंसी वगैरह।
तो वो उन्होंने 2-3 बार ही करवाया हुआ है वो सब चीजें, तो हम आयुर्वेद में आगे हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? मैं उसमें कवर करने वाली हूँ कि हम्म। आयुर्वेद के ओव्यूलेशन मैम इंडक्शन इसमें जैसे ये क्या कारण हो सकता है उसमें, ये कि एंडोमेट्रियम थिकनेस भी बराबर हुई और उसके बाद एग का भी साइज वो भी हो गया, लेकिन वो उनका आई गेस 2-3 साल से वो कर रहे हैं। हम्म। हम्म। एक्चुअली कभी कभी ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो अनेक हेतु ग्रंथकारों ने बताए हैं उसमें दैव एक भी, ये भी एक हेतु है। तो मैं तो मेरे पेशेंट को बोलती हूँ कि मेरे सब रिपोर्ट्स नॉर्मल लाके आपके सामने रखना ये मेरा काम है, बट कंसेप्शन जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। दैट बिल्कुल इज बिल्कुल। दैट इज यानी गॉड्स प्लान फॉर यू। तो मैं हर एक ट्यूबल ब्लॉक है ओपन करके देती हूँ आपको, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है ओव्यूलेशन करके देती हूँ, एंडोमेट्रियल थिकनेस नहीं बढ़ रहा है, ये देखो एंडोमेट्रियल थिकनेस मैम बढ़ रहा आयुर्वेद में भी जो ये जैसे आप ट्यूबल ब्लॉक बोल रहे हो, ये आयुर्वेद के डॉक्टर्स को कर सकते हैं इसके में जो जैसे है। मैं आपको ट्यूब्स सब ओपन रिपोर्ट्स करने हैं? दिखाऊंगी, सब रिपोर्ट्स, बिफोर ट्रीटमेंट ट्यूबल ब्लॉक, आफ्टर ट्रीटमेंट ट्यूब्स ओपन है, ये सब रिपोर्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं, मेडिसिन से कि उसमें भी हो जाता है जो मतलब सर्जरी वगैरह का भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता सर्जरी है? नहीं, अपने आयुर्वेदिक उत्तर बस्ती, पीचू, योनि धावन, धूपन, ये सब चीजों से ओपन हो जाता है। ओके ओके ओके। हाँ, 95% पेशेंट में ओपन होता है, ओके। इन सब चीजों 2% से मैम जैसे ये सब चीजें फिर अ, सीखने के लिए मैम जैसे ऑनलाइन तो हमने ये चीजें जान ली, इसके बारे में सारा कर लिया, लेकिन जब तक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो कैसे हम वो कर पाएंगे? तो इसमें आप लॉन्ग भी बाद में वो भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जैसे 2 दिन की बोल रहे हैं आप, हाँ हाँ। उसके बाद जैसे इसका कल को हमें वहां पे हमें 2 दिन में हमें लगा कि नहीं एनवायरनमेंट हमें सूट कर रहा है प्रॉपर, हमें लग रहा है कि आगे हम इसमें कर सकते हैं, तो आप उसके बाद वो भी करेंगे मेरा कि मेरा हम? उत्तर बस्ती का सीडी भी है, वो भी आपको दिखाऊंगी। हाँ मैंने कहा कल को जैसे हमें ये वो भी इसमें। सीडी मैं आपको दिखा पाऊंगी, यानी प्रोसीजर, मेरी जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है वो भी दिखाऊंगी आपको, ओके ओके। सो दैट यू विल बिल्ड द कॉन्फिडेंस। लेकिन हम जब तक प्रैक्टिकली हम करेंगे नहीं खुद पेशेंट्स पे, या जैसे आप करते हैं तो हम साथ में जैसे लेकिन फिर आपको यहाँ पुणे आना पड़ेगा वो कोर्स के लिए। अदरवाइज आपके इधर आप मुझे बुलाइए, मैं आऊंगी, आप थोड़े लोग आ जाइए एक साथ में, आप 1 2 3 पेशेंट रखिए, मैं पूरा आपको वहां पर एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो भी हो सकता है। यश सर, डॉक्टर यश, यू शुड थिंक अबाउट दिस। Yes, ओके ma'am. ओके After the completion of this course, we will plan it soon. यस यस, श्योर श्योर। ओके Ma'am, ओके I ओके, ठीक है, request थैंक यू। you that you kindly share which kind of consent we need to take while doing all these our Stanik Chikitsa and Yes, Ayurvedic yes, treatment. yes, yes. We have all consents. We have, you know, even procedure consents. Job card means procedure card is there. Everything we have. So I will share you all the things. Thank you, ma'am. Yes. Theory also I will try to make you little bit interesting. तो देखेंगे कैसे होता है, लेकिन थियोरेटिकल पार्ट जो है वो ग्रंथों से जैसे हम लोग लेते हैं, वैसे एडवांस रिसर्चेस जो होते हैं उनके ऊपर भी हम लोगों को बहुत सारा थ्योरी पता होना जरूरी होता है। जैसे मैंने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस थी, इनकी मॉडर्न साइंस की कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर उन्होंने मुझे यानी इनफर्टिलिटी की कॉन्फ्रेंस थी, तो हैदराबाद में उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। दिल्ली की कॉन्फ्रेंस पीसीओडी की थी, उसमें भी मुझे उन्होंने आयुर्वेद स्पेशलिस्ट करके इनवाइट किया था, लेकिन हैदराबाद में जो थी वो स्पेशली इनफर्टिलिटी की थी। एंड इन दैट कॉन्फ्रेंस आई डिलीवर्ड द लेक्चर दैट फिलिंग द गैप्स of the failure of IVF and IUI and ICSI.
तो वो वहां पर उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया था कि उनका फेल्यूर रेट हमारे ट्रीटमेंट से हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो दैट लेक्चर आई डिलीवर्ड देयर इन हैदराबाद कॉन्फ्रेंस. दे इनवाइटेड मी फॉर द नॉट आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस नहीं था, वो मॉडर्न का कॉन्फ्रेंस था. तो वहां पर फीलिंग द गैप्स करके मैंने वहां पर एक लेक्चर डिलीवर किया था कि आयुर्वेद हम लोग क्या कर सकते. एंड फॉर ऑल I actually shared all the research papers which supports the Ayurvedic theoretical knowledge. तो वो जो है, जैसे उत्तर बस्ती को मॉडर्न का कौन सा रिसर्च हमारी उत्तर बस्ती को सपोर्ट करता है, वो मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था. या फिर पिन होल ऑस अगर होता है तो वहां पर बहुत बार लैप्रोस्कोपी भी डिफिकल्ट हो जाती है टू पुट द स्कोप इन द सर्विक्स. तो वहां पर वो लोग क्या कर सकते हैं वो सॉफ्ट करने के लिए या फिर वो ऑस ओपन करने के लिए. एडिजन्स है, जहां पर एडिजन्स में आईवीएफ इक्सी भी कभी कभी फेल हो जाता है, तो एडिजन्स में आयुर्वेद क्या कर सकता है. तो लाइक दैट इवन एंडोमेट्रियोसिस में आयुर्वेद क्या कर सकता है. तो लाइक दैट आई डिलीवर्ड लेक्चर देयर ऑल्सो. तो इस तरह से इंटीग्रेटेड वे ऑफ से अगर आप सोचना शुरू करते हो तो बहुत कुछ सक्सेसफुल हो सकता है अपना प्रैक्टिस यानी केस. तो आई विल आपके रिकॉर्डेड लेक्चर हम कहाँ पे देख सकते हैं? हाँ, आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो कहाँ पे देख सकते हैं? नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर हेलो? मेरे एक्चुअली हाँ. वेबिनार्स ही बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है मेरे. अभी यश, डॉक्टर यश, इनकी जो टीम है वो शायद रिकॉर्ड करेंगी, वो आप सब लोगों को मिल जाएंगे. वो आपको मैम आपकी जैसे आप रजिस्टर्ड मेल आईडी पे सीडी मिल जाएंगे. आपसे दिखाएंगे तो सीडी वगैरह मिल सकते हैं ऐसा, जैसे हम ऑफलाइन देख सकें? डॉक्टर यश, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. रिकॉर्डिंग कोर्स के साथ साथ हमारे ऐप पर अवेलेबल रहेगी, जो नेक्स्ट 6 मंथ तक टू 1 ईयर तो 6 मंथ तक आपके लिए होगी. आप कभी भी उस लेक्चर्स को वहां देख सकते हैं. इज इट ओके डॉक्टर रामकृष्ण? ओके सर. सर वो 1 साल तक अवेलेबल होगी? 6 मंथ के लिए अवेलेबल होगी सर. 6 मंथ्स के लिए? यस सर. ओके ओके सर. 1 ईयर तक नहीं अवेलेबल हो सकती? Sir, if you could extend, that's better, because in within 6 months, as we go on starting practicing infertility, at least we may need a 1 year guidance for that. Yeah. Because Yes sir. 6 month it's request from all of us. It's request from all of us. मैम मेन प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हम 1 साल के लिए देते हैं ना तो डेलीगेट्स उसे इंटरेस्टेड नहीं लेते, फिर वो बिल्कुल लास्ट में ही देखते हैं और फिर वो भूल भी जाते हैं. नहीं एक्चुअली सर, जैसे मैं Sir, आप फाइनल ईयर टेस्ट में हूँ अभी. कंडक्ट कर लो, हमारा टेस्ट कंडक्ट कर लो बीच बीच में. नहीं, एक्चुअली स्मिता, मेरे लेक्चर के बाद में Yes, आई ma'am. एम श्योर कि आपको वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा. Thank you so much, ma'am. I heard you previously also, ma'am. I am from Maharashtra itself, and I heard you on many platforms, ma'am. I have that confidence. Yes. So I also have that confidence कि रामकृष्ण सर, डॉक्टर रामकृष्ण, you will not means आपको जरूरी नहीं पड़ेगा कि आप बहुत बार वो रेफर करो, आपको वो चीज अच्छी तरह से ध्यान में रहेगी. Because I believe in teaching practical clinical teaching में मैं ज्यादा ये करती हूँ, ना कि theoretical teaching में. थ्योरी तो है ना सभी अपने पास, you all have the books ना. So which to take the references from the theory. I remember, ma'am, in one of the conference you told that like we have a allopathic hospital just adjacent to our hospital. That's in within a campus we have allopathic hospital. How Yes. much we are facing the competition and all those things, and how we are like we are treating the patient. They are doing the surgery and we are making the patient avoid the surgery. I still remember those were your words, ma'am. Yes, that in that nearby our hospital, they used to say like that कि why patient go to Bharati Ayurveda hospital, because they are giving dhuri to them
after delivery. So patient goes there. Means we are giving dhupan in the ward to the patient. So patient Yes, comes. ma'am, you shared this on this Yes, experience also. sir. Yes, yes. They are criticizing us कि we are giving the dhupan to the patient. Even one more joke is there in their hospital that Mohite madam gives, we don't understand. She gives Madhu, Malini and Vasanta. We don't understand what is Madhu, who is Malini and who is Vasanta. Oh So my she God. is giving Madhu, Malini and Vasanta for treating IUGR. So, you have to make yourself like that ki people also knows ki what type of practice you are doing. And which is of course effective. So true, ma'am. So true. Any more question from any participant? हेलो मैम। Yes. मैम मेरे को ये पूछना था, हमारे में क्लासेस में हाई टीएसएच और हाई प्रोलैक्टिन वाले केस भी हम डिस्कस करेंगे ना मैम? 10 लेक्चर में 10 आवर्स में क्या क्या करेंगे, जो भी हो सकता है करेंगे। और कुछ मिस हो जाता है तो आप मुझे लास्ट 2 लेक्चर्स में रिमाइंड करो कि मैडम ये रह गया, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स जी 10 में भी देयर आर लॉट ऑफ सब टॉपिक्स, बट ऑफ कोर्स प्रोलैक्टिन लेवल, टीएसएच, तो वो तो करना ही चाहिए। और मेरे पास ये बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो ऑफ कोर्स आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस कि आप ये देख सकते हो, ये दे सकते हो, ये दे सकते हो। और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है। ऑलवेज रिमेम्बर, आप टीएसएच रिड्यूस कर, टीएसएच पे आप दे रहे, आपको अभी टीएसएच करिए, आपका ट्रीटमेंट दीजिए, टीएसएच रिव्यू मींस रिपीट करिए। प्रोलैक्टिन के लिए आप कुछ दे रहे, आप ट्रीटमेंट दीजिए, प्रोलैक्टिन रिपीट करिए। तो ऐसे ही छोड़कर नहीं देना है। अपना ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है कि नहीं, जैसे वो पेपर पे दिखाते हैं कि ये एलिवेटेड है और रेज्ड है या डीरेज्ड है, हम पेपर पे ही दिखाएंगे कि ये नॉर्मल है, नॉट डीरेज नहीं है, अभी नॉर्मल आया है। तो ऐसी प्रैक्टिस होना चाहिए बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट। जी जी मैम। बिल्कुल वर्बली नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने ये किया, ट्रीट किया। नहीं, हम आपको मराठी में एक फ्रेज है, हा सूर्य हा जयद्रथ, यानी आपको दिखाना है कि ये LHFSH रेशो है रिवर्स, ये मेरे ट्रीटमेंट से नॉर्मल हुआ है, ये ओवेरियन वॉल्यूम इतना है, मेरे ट्रीटमेंट से ओवेरियन वॉल्यूम इतना हुआ है, ये प्रोलैक्टिन लेवल इतना है, मेरे ट्रीटमेंट से इतना हुआ है, टीएसएच इतना है, मेरे ट्रीटमेंट से ऐसा हुआ है, ट्यूबल ब्लॉक है, मेरे ट्रीटमेंट से ट्यूबल ब्लॉक ओपन हुआ है। दोनों एक्सरे साथ में होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। थैंक यू। Hello, ma'am. हेलो, यस डॉक्टर दिव्या। Ma'am, please would you suggest some good practical approaching PTSR book for study, as I am a BMS doctor, so we need further reference. Can you suggest some good writers or books? मेरे हिसाब से तो 2 बहुत अच्छे, एक निर्मला जोशी फॉर स्त्री रोग, बहुत अच्छा है। वेरी ओल्ड बुक बट द बुक इज वेरी गुड। The concepts are very clear in that book. I did not find, because क्या हुआ है, आयुर्वेद और मॉडर्न का एक दूसरे में डाल के इतना कंफ्यूजन, और इसको, और हर एक का ओपिनियन अलग रहता है, इसको ये बोलना है, उसको ये बोलना है, इसको ये बोलना है। सो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो प्रेमवती तिवारी मैडम का अच्छा है, और दूसरा उसमें रेफरेंसेस बहुत अच्छे हैं, और कंसेप्ट क्लियर अगर आपको होने, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद निर्मला जोशी का मैडम का पुस्तक रेफर करती हूँ। Okay, ma'am. Thank you. मैम, यस सर। मैम मैं पूछ रहा था कि हमें, जैसे हम बीएमएस डॉक्टर हैं, तो हमें इंटीग्रेटिव प्रैक्टिस के बारे में सोचना चाहिए कि थोड़ा बहुत एलोपैथ अगर हमें लगता है कि ये काम कर सकता है इसमें, तो बीच में हम साथ में आयुर्वेद की, हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि नहीं आयुर्वेद का ही हमें।
नहीं, एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि इनिशियली आपको आयुर्वेद पे ही ट्राई करना चाहिए 100%। जैसे हमारा एक रिसर्च पेपर है, यू कैन गो थ्रू ओव्यूलेशन इंडक्शन बाय आयुर्वेदिक योग रत्नाकर का एक पार्ट है, उसमें ओव्यूलेशन इंडक्शन पे हमने रिसर्च किया और बहुत अच्छा फर्टिल के जैसा ओव्यूलेशन होता है उस आप डालिए मेरा नाम और डॉक्टर मैम तो ओव्यूलेशन इंडक्शन पे है हमारा एक रिसर्च पेपर। ओवुलेशन इंडक्शन जैसे फर्टिल इंडक्शन यूज करते हैं उस तरह से एक आयुर्वेद का फॉर्मुलेशन है जो हमने वहां पर जस्टिफाई किया और हमने यूज किया है वो। मैम ये ऑनलाइन जैसे गूगल पे मिल जाएगा? हाँ, गूगल पे है। ओवुलेशन इंडक्शन बाय, आपका नाम लिख देंगे, बाय डॉक्टर स्वाति। यस यस यस, ओके ओके, आप देख लो एक बार वो रिसर्च पेपर। और हमने वो जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रंथुक्त कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमने उसके कंटेंट्स के केमिकल कंपोजिशन के जो ये है क्या केमिकल कंपोजिशन के जो रिसर्चेस है उसको सपोर्ट लेके हमने वो फॉर्मुलेशन सिलेक्ट किया है। ओके ओके मैम, जैसे आप इसमें स्ट्रिक्टली आयुर्वेद का ही करते हैं प्रॉपर? मैं 90% आयुर्वेद यूज करती हूँ, 10% मॉडर्न साइंस यूज करती हूँ। ओके ओके, ठीक है मैम। तो मैम जैसे इस 10 दिन में हम, इनफर्टिलिटी एक टॉपिक है, नो डाउट बहुत वास्ट है, लेकिन 10 दिन में हम मैक्सिमम इसके बारे में जो प्रैक्टिकल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है उसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में 10 दिन में हम सीख पाएंगे हम उसमें काफी कुछ, जैसे ट्रीटमेंट में मेडिकेशन हो गया या फिर पंचकर्मा के ट्रीटमेंट्स बोल रहे हैं आप, हाँ, तो वो मैं आपको जैसे प्रोटोकॉल तो शेयर करूंगी ही ना, तो यू कैन यूज दोस्त। पेशेंट के जैसे सिम्टम्स हैं जरूरी है पेशेंट के, जैसे आप मैम अपने केसेस भी डिस्कस करोगे कि पेशेंट के मतलब पहले जब आए थे तब ये रिपोर्ट्स थी उनकी या सिम्टम्स थे, लाइक पीसीओडी के लिए ही हो गया, पीसीओडी था पेशेंट को, उसमें हमें ट्रीटमेंट उनके क्या पहले प्रकृति देखनी है, फिर उसमें कहाँ से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, मेडिकेशन हम आयुर्वेद की कौन कौन से फॉर्मुलेशंस हम यूज कर सकते हैं, वो आप सारा मैम उसमें एक्सप्लेन उसके करेंगे। लिए ये इसी एक टॉपिक को 10 लेक्चर लगेंगे जो आप टॉपिक बोल रहे हो। हाँ हाँ मैम, उसमें जो मेडिकेशन जैसे फॉर्मुलेशंस हम आयुर्वेद की कौन कौन सी यूज कर, अच्छा मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसी को पर्टिकुलर को 10 लगेंगे। तो मैम इन 10 दिनों में हम क्या कर पाएंगे फिर? जितना क्लिनिकल नॉलेज आपको प्रैक्टिस में मेरे लेक्चर के बाद में कम से कम आपका 40% तो क्लिनिकल नॉलेज आप प्रैक्टिस में आपकी शुरू कर सकते हैं इमीडिएटली, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मैम जैसे हमें जैसे मैम जैसे आप इनफर्टिलिटी का बोल रहे हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मतलब जैसे मॉडर्न में मल्टी स्पेशलिटी होती है कि वो अपना एक अपनी एक फील्ड चूज करके रखते हैं, तो हमें पर्टिकुलर एक फील्ड में काम करना चाहिए कि मैम, या फिर डाइवर्सिटी, जैसे मतलब हम सभी केसेस देख रहे हैं, मतलब नेफ्रो के भी देख रहे हैं या गायनी के भी देख रहे हैं कि हमें, जैसे मेरे टीचर्स थे उन्होंने बोला था अपनी 1 या 2 फील्ड पकड़ लो और उसमें इतना काम करो कि मेरा तो कहना है कि किसी ने सिर्फ एडोलेसेंट एज पे काम करना है, किसी ने सिर्फ मेरी पेरीमेनोपॉजल एज पे काम करी है, किसी ने सिर्फ पोस्ट मेनोपॉजल एज पे काम करी है, वो भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल सकती है। पीसीओडी क्लिनिक भी चल सकता है, पोस्ट मेनोपॉजल भी चल सकता है, पेरीमेनोपॉजल पे बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट हो सकता है। मैं मेरे स्टूडेंट को हर बार कहती हूँ कि आप मेरे से एक एक कंसेप्ट ले लो और उसी पे प्रैक्टिस करो, आपको पैसे ही कमाने हैं ना तो उसी पे प्रैक्टिस करो, और उस तरह से पेशेंट आते। हाँ जी मैम, मैं बोल रहा था जिनका जैसे मेरे फादर भी बीएमएस डॉक्टर ही हैं, तो जैसे उनका क्लिनिक जैसे हमारा चल रहा है उसमें हम नेफ्रो के केसेस भी देखते हैं, किडनी स्टोन्स हो गए या गायनी के भी देखते हैं, जहाँ ये डाइजेस्टिव इश्यूज हो वो सब भी देखते हैं,
तो वो तो जैसे चल ही रहा है ना, उसमें हम अलग से कैसे एक पर्टिकुलर बनाएंगे कि नहीं हम पीसीओडी देखेंगे, कि वो वाले केस नहीं देखेंगे, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप पीसीओडी का एक केस बहुत अच्छा देख के, बहुत अच्छा काउंसलिंग करके अच्छी तरह से ट्रीट कर लो, ठीक है, अपने आप आपके पास पीसीओडी के केस आने लगेंगे। तो जो बाकी केसेस है वो तो हम देखेंगे ही ना, वो तो 100% जैसे वो तो होगा ही। हाँ, लेकिन साइमल्टेनियसली ये एक आपका स्पेशलिटी, उसको स्पेशल डे आप अलॉट, वहां पे हम अपने नाम के आगे स्पेशलिटी कर सकते हैं, नो डाउट केसेस सभी देखेंगे, स्पेशलिटी लिख सकते हैं अगर हमारी कमांड इसमें ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते। अभी हमारे स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का दिल्ली में ही शायद आयुर्वेदिक इंफर्टिलिटी हॉस्पिटल है। तो मैम बीएमएस डॉक्टर ये कर सकते हैं ऐसे कि आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी करके कि उसका एमडी होना चाहिए। यू शुड प्रिपेयर योर ओन टीम, अकेले मत करना, आपकी टीम तैयार करिए। एमएस गायनिक लीजिए, एमएस आयुर्वेद का गायनिक लीजिए, एक पंचकर्मा का व्यक्ति लीजिए, आप सेंट्रल रहिए, और ये सबको मिला के आप अगर अपना प्रैक्टिस डेवलप करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। ओके ओके, ये प्रॉब्लम है, हम अकेले ही लड़ना चाहते। मॉडर्न साइंस के लोग ऐसे नहीं करते, सब मिलके काम करते। हम लोगों ऐसा नहीं करते। हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि हम हमारे पैथी के, मैं नहीं बोल रही कि मॉडर्न के लोग अपने साथ ले लो, लेकिन एमएस गायनिक का व्यक्ति आपके पास रखो। आपसे ये पीसीओडी ट्रीट नहीं होता है बोलना, हमारे पास स्पेशलिटी डॉक्टर आते, वो एक बार आपको देख कर जाएंगे। जैसे मैं बहुत सारे पंचकर्म के हॉस्पिटल्स में जाती हूँ जहाँ पर दे कि मैडम हमारे पास ये केस है, आप आके आपका एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए, तो यू कैन प्रिपेयर योर टीम एंड वर्क, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ताकि एक आप अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसा करने से अच्छा है कि आपकी टीम बना के आप आगे जाइए, तो प्रैक्टिस अच्छा होता है। यश, आई थिंक टाइम इज ओवर। Yes, ma'am. अच्छा, so see you all. यस सर। See you all soon. सर वो एक साल का वो देख लेना सर प्लीज अगर हो सके तो। सर उसमें ऐसा है कि 6 मंथ ही ठीक रहता है। उसमें अगर बच्चे कोई एक आधा ऐसा होता है कि जिसको बाद में भी रिवाइज करना होता है, तो ऐसा नहीं है, उसको हम एक्सेस नहीं देते हैं, उसको हम 1-2 महीने का एक्स्ट्रा दे देते हैं। बट 6 मंथ इनफ है, क्योंकि इसमें रिवाइज ठीक टाइम से हो जाता है। और दूसरा ये है कि बच्चों को पता रहता है कि हमारे पास इतना टाइम है, हम इसको कर लेते हैं। कुछ होते हैं पर्सन जिनको उनको होता है कि हमें एक्सेस और मिल जाए, तो हम देते भी हैं। अगर आपको भी ऐसा कुछ होगा 6 मंथ के बाद तो जरूर करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू रंजन सर। थैंक यू मैम। Thanks a lot, ma'am, for your valuable time and support. We will meet soon in the course. And thanks a lot, ma'am.